Now let's start with Unit 3, Chapter number 11, Martial Art Form. A martial art is one of the method of fighting often without weapon. मतलब आप लड़ाई कर रहे हो लेकिन बिना किसी वेपन के, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? मार्शल आर्ट. नाउ रीड द क्लूज टू आइडेंटिफाई द मार्शल आर्ट फॉर्म. आपको आइडेंटिफाई करना है, क्लूज पढ़ना है, फिर आइडेंटिफाई करना. जैसे कि डैश इज अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट फ्रॉम क्यूबाइन. The name literally means to hits and the style focuses on manipulation of the opponent's joint as well as breaking their bones. इसे क्या कहा जाता है? कापू को यालवा. ठीक है, it's known as कापू को यालवा. Dash is an ancient Cambodian martial art having its origin on the battlefield. इसका जो origin हुआ है वो battlefield पर हुआ. Its name literally means pounding a lion. क्या बोला जाता है? Pounding a lion. Fighters uses weapons और उनकी जो body to fight their opponent. इसको क्या कहता है? Bakato. Next, third is दिस इज अ मार्शल आर्ट स्टाइल. ये मार्शल आर्ट स्टाइल है, ये कहाँ से मिला है? पेरू से. ये मार्शल आर्ट स्टाइल है पेरू. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मार्शल आर्ट वेयर पीपल यूज देयर बॉडी एंड हिडन वेपन्स टू फाइट देयर ओपोनेंट. हिडन वेपन का यूज करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज बेकॉन. पॉपुलरली नोन एज किक बॉक्सिंग. डैश इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ थाईलैंड. नेशनल स्पोर्ट ऑफ थाईलैंड है. इट्स नेम्स लिटरली ट्रांसलेट थाई बॉक्सिंग. ठीक है. एंड फाइटर यूजेस फिस्ट, फीट, शिन और नी और एल्बो का यूज करते हैं. इसका क्या नाम है? इट्स अ म्योन थाई. ठीक है, इसका नाम है म्याओ थाई. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द फेमस मार्शल आर्टिस्ट. ये कुछ फेमस मार्शल आर्टिस्ट है. आपको इनको आइडेंटिफाई करना है कि हु आर दे. फर्स्ट आपको देख के पता चल रहा होगा हु इज ही. ही इज ब्रूस ली. कौन है ये? ब्रूस ली. नेक्स्ट सेकंड आपको इनको भी जैकी चैन. कौन है ये? जैकी चैन. ठीक है, जैकी चैन. नेक्स्ट इज आफ्टर हिम विदुत जामवाल. And he is John Sexshaw. ठीक है. This chapter is complete. We will start with the next chapter, that is chapter number 12. They born to invent. Invention made our lives easy and comfortable. ठीक है, invention ने हमारी लाइफ को क्या बना दिया? Easy and comfortable. Identify the names of the inventor from their invention. ठीक है, उन्होंने क्या क्या इन्वेंट करा, उनके आपको नेम आइडेंटिफाई करना है. An Indian American computer engineer developed USB in 1995. Who is he? He is अजय भट्ट. ये कौन है? अजय भट्ट. Next is the Danish engineer invented Bluetooth on the behalf of Ericsson in 1994. Jack Hudson. There. Next is he is regarded as the father of cellular phone
It's American engineer and his team built the first mobile cellular phone. First mobile cellular phone बनाया कब? In 1973. कौन है ये? मार्टिन कूपर. Next is she invented the home CCTV in 1966, connecting motorized camera to monitor and remote door operating system. ठीक है, इन्होंने क्या करा है? रिमोट डोर ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज करा है. ही इज मैरी वैन. कौन है ये? मैरी वैन ब्रिटन ब्राउन. मैरी वैन ब्रिटन ब्राउन, द कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने व्हाट्सएप डेवलप करा है अलॉन्ग विद ब्रियन एक्टन in 2009. Who is he? He is Jan Paul. ठीक है. Now this chapter is also complete. We will start with chapter number 13. Accidental invention. जो accidentally invent हुए, not all invention are planned. Given below the stories behind some accidental invention. यहाँ पे कुछ accidental invention के बारे में दिया. Let's read about them. इनके बारे में पढ़ते हैं. जैसे फर्स्ट है आपका पोस्ट इट्स. While developing a strong adhesive, Spencer Silver accidentally made a weak adhesive that was used to join paper. Thus, the post-its were invented. क्या था? post-its. While developing a rust-proof gun barrel, British जो मेटल अगर इस पे हैरी ड्रेयली, इन्होंने टेस्ट करा along with लेमन जूस एलॉय को. वो क्या था? corrosiveness को चेक करना चाहते थे and realize it could be used to make cutlery. और एक्सीडेंटली उन्होंने क्या डेवलप करा? स्टेनलेस स्टील. While developing plastic lenses for gun sight, Harry Cooper accidentally developed highly sticky adhesive जिसे हम सुपर ग्लू कहते हैं. क्या कहते हैं? सुपर ग्लू. In 1905, 11-year-old Frank Epperson accidentally left a cup of flavored soda with a stirring stick on the out in the cold. और वो फ्रोज हो गई, जिससे उन्होंने क्या बनाया? Popsicle was invented. While experimenting with refrigerator, Roy Plunkett, इन्होंने क्या? मटेरियल जो टेफ्लिन के मेटल होते हैं, इन्होंने वो नॉन स्टिक होते हैं, उन्होंने ये बनाया. Now state whether these statements are about true or false. Sir Francis Drake was the first Englishman to sail all around the world. It's true. ये पहले थे जिन्होंने क्या करा था? सेल करा था. Next is first woman to fly solo was across Atlantic Ocean was from France. False. वो फ्रांस से नहीं थी. Now Christopher Columbus, इन्होंने Island of Antigua. It's true. In January 2017, जो फ्रेंचमैन फ्रांसिस जोयल थे और उनकी जो 5 मेंबर टीम थी, उन्होंने कंप्लीट करा फास्टेस्ट सेल अराउंड द वर्ल्ड. और कितने डेज में? 57. इट्स ट्रू. 2040 में रोशनी शर्मा ये पहली वुमेन बनी जिन्होंने ड्राइव करा सोलो ऑन अ मोटरसाइकिल फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी. इट्स ट्रू. शी वाज द फर्स्ट वुमेन. 1989, British actor Michael Caine undertook same journey and was done by Phileas Fogg and Julius Verne book around the world in 80 days. It's true. इन्होंने कितने दिन में करा था? 80 days में. ठीक है. This chapter is also complete. Now we will start with chapter number 14, Science Mania. Many scientists gave their contribution in the field of science. ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया है. अब हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स रीड अबाउट सम फेमस साइंटिस्ट. हम कुछ फेमस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं. जैसे फर्स्ट इज एपीजे अब्दुल कलाम. ये पहले इंडियन मोस्ट बिलोव्ड प्रेसिडेंट थे. इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है. और इन्होंने क्या कहा? इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी और बैलिस्टिक प्रोग्रामों को क्या करा है? डेवलप करा है, जिसमें इन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल और पोखरम सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट करा. नेक्स्ट है सुब्रमण्य चंद्रशेखर. ये इंडियन अमेरिकन फिजिक्स थे जिन्हें 1983 में फिजिक्स नोबेल प्राइज मिला फॉर हिज वर्क ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और इवोल्यूशन ऑफ द स्टार. किस पे? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार एज वेल एज इन फॉर द स्टडी ऑफ ब्लैक होल. इन्होंने ब्लैक होल को ही पढ़ा.
न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होमी भाभा, इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। हिज ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ पोजीशन बाय इलेक्ट्रॉन इज नेम्ड आफ्टर। नौ विक्रम साराभाई, इसको फादर ऑफ इंडियन स्पेस कहा जाता है। उन्होंने इंडिया स्पेस इसरो को स्टैब्लिश करा था और इंस्ट्रूमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। इन्होंने कौन सी पहली सैटेलाइट, आर्यभट्टा जो पहली सैटेलाइट है वो लॉन्च करी, ठीक है। ये देखो कुछ फेमस है। नेक्स्ट, अ केमिस्ट बाय एजुकेशन असीमा चटर्जी वॉज द फर्स्ट वुमेन जिनको accorded a Doctor of Science title in Indian University. She is best known for the development of cancer medication or anti-malaria and anti-epileptic drugs. Tessie Thomas, a renowned scientist, who was the program director for the Agni 4 or Agni missile and its first woman to head missile project in India. She is fondly known as, इनको क्या कहा जाता है, she is known as missile woman in India. इनको मिसाइल वुमेन कहा जाता है। नाउ मैच द फॉलोइंग इंटरनेशनल साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरी। देखो, एनिको फर्मी, इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर विद एटॉमिक बॉम्ब बनाया। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या बनाई, पेनिसिलिन। जोनास स्टॉक ने क्या बनाया आपका, पोलियो वैक्सीन। रॉबर्ट गॉर्डन ने आपका क्या बनाया है, दैट इज रॉकेट। एंड फेडरिक गॉलैंड या हॉपकिंस ने क्या बनाया, व्हाइट टर्म्स, ठीक है। नाउ दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 15, लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी टर्म्स आर द डिवाइसेस यूज्ड टू मेक राइटिंग बेटर, जिससे आप राइटिंग को क्या बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। नाउ रीड द क्लूज टू आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूजिंग हेल्प बॉक्स। आप हेल्प बॉक्स का यूज करेंगे। Now first is it refers to conventional spelling system of the language. इसको क्या कहा जाता है, ऑर्थोग्राफ। इसको क्या कहा जाता है, ऑर्थोग्राफ। नेक्स्ट इज टू और मोर वर्ड्स विद द सेम स्पेलिंग पर डिफरेंट मीनिंग। स्पेलिंग तो सेम होती है लेकिन डिफरेंट मीनिंग होते हैं। होमोनेम कहा जाता है, होमोनेम, ठीक है। A word that describe itself, for example, a noun, a word is a word, तो इन्हें क्या कहा जाता है, एंटोनियम। Now it is a long speech made by character in a play or film. ये लॉन्ग स्पीच होती है, इसको बनाया जाता है ना करेक्टर और फिल्म। इसको क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज मोनोलॉग। क्या कहा जाता है इसे, मोनोलॉग। इट इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ वर्ड, मतलब स्टडी होती है ओरिजिन की और इवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स की। इसको क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ वर्ड्स और इवोल्यूशन को, इट इज नोन एज एटिमोलॉजी। Exaggeration or excessive description used for dramatic effect or for emotional reaction, उसको क्या कहा जाता है, इट्स नोन एज हाइपरबोल। नेक्स्ट इज व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज रिप्रेजेंटेड इन अ सेंटेंस। ही वाज स्वेटिंग लाइक अ रेस हॉर्स, ये क्या है, स्माइली। Next is when words vocalization imitates a natural sound like words in murmur, buzz and pops. उसको क्या कहा जाता है, it is known as onomatopoeia. ठीक है, this chapter is also complete. Now our unit 3rd is also complete. Hope you understood. That's all for today. Thank you.